Hello student, welcome to biology summer class. In the previous class, आमे discussion करथिले growth and reproduction. एबे discussion करिवा third properties of living organism, that is metabolism. What is metabolism? The sum total of biochemical reaction of living organism is called metabolism. Or the sum total of biochemical reaction takes place in living organism is called metabolism. Biochemical reaction means bio means living, chemical reaction means chemical रो जो reaction होबो. Reaction देखो, this is one reaction. ए reaction जेहेतु लिविंग ऑर्गेनिज्म मान को होतिवारु ए रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन कहा जाए. बायो मीन्स लिविंग, केमिकल रिएक्शन मीन्स केमिकल रिएक्शन. देन बायोकेमिकल रिएक्शन मीन्स जो रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म मान करे हुए, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल रिएक्शन. तो सबु सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. जेतिकी सबु लिविंग ऑर्गेनिज्म मान करे जो रिएक्शन होची, दैट इज सम टोटल ऑफ दैट इज सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन. से सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मान को रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहा जाए. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म? द सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म मान करे जेतिकी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होची, से रिएक्शन मान को मेटाबॉलिज्म कहा जाए. और एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म plus catabolism together called metabolism. It is otherwise called anabolism plus catabolism equal to metabolism. Metabolism divided into two types, that are anabolism and catabolism. What is anabolism? Anabolism, it is a synthetic process, means small molecule gudako combine है कि large molecule formation करिवे. That is anabolism is, it is synthetic process, that is A B small molecule मिसी की A B complex molecule formation होबो, that is synthesis. A B synthesis हला. Best example your photosynthesis. What is photosynthesis? Carbohydrate are formed from the water and carbon dioxide in presence of sunlight in the chlorophyll pigment of leaf is called photosynthesis. Here small molecules, carbon dioxide and water in presence of sunlight in the chlorophyll pigment of leaf, glucose, carbohydrate, that is glucose C6H12O6, glucose is formed. Glucose is complex molecule. Small molecule को नहीं कि जो complex molecule formation होगा, that process is called synthetic process of anabolism और anabolism कहा जाओ. तो what is photosynthesis definition? Photosynthesis तो मैं पढ़ी चो आलोक संश्लेषण पढ़ी चो तो मैं 10th क्लास रे. तो एबे इंग्लिश रे ता डेफिनेशन मन रखिबो. कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द क्लोरोफिल पिगमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. मींस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रे सनलाइट रो प्रेजेंस रे क्लोरोफिल पिगमेंट लीफ रो क्लोरोफिल पिगमेंट रे जो रिएक्शन है कि ग्लूकोज बाहरिबो and water and oxygen बाहरती, that process is called photosynthesis. और photosynthetic reaction को anabolism कहा जाओ. काहे कि anabolism is a synthetic process. एडी synthesis होची कोन synthesis हला? ग्लूकोज दा synthesis हला. small molecule मिसी कि ଗୋଟେ larger molecule formation होबा, that is called anabolism. But catabolism destructive process. ये कोन हबो? large molecule टा destruction हे जो भांगी जाय कि small molecule रे परिणत हबो. That is AB, it is a larger molecule. ये breakdown है कि small AB small molecule है ची. Example, best example your respiration. That is glucose C6H12O6, glucose टा oxygen रो presence रे आसिले ए glucose टा भांगी जाए एवं carbon dioxide, water and ATP small molecule रे formation हुए. That is called catabolism. Means it is destructive process. So it कौन होची? destruction होची. तो large molecule, that is glucose, oxygen रो presence रे breakdown होची, खंड होची, भांगी जाउची, ब्रेक है कि ना
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एटीपी फॉर्मेशन होची तो रेस्पिरेशन इज द एग्जांपल ऑफ कैटाबोलिज्म देन amphibolism what is amphibolism both amphibolism is both anabolism and catabolism process occur means amphibolism रे both anabolism and catabolism process हुए example देखो a plus b a भी हो परिबो a भी breakdown है कि a plus b मध्ये हो परिबो it is amphibolism means जो reaction रे both anabolic reaction and catabolic reaction हुए ताकू amphibolism कहा जाए तो both anabolism and catabolism process occur that is called amphibolism both anabolism and catabolism process को amphibolism कहा जाए example Krebs cycle and glycolysis रे तमे amphibolism पाई परियो पा रिएक्शन गुडा को रिवर्स रिएक्शन गुडा को तमे पाई परियो एटा रिवर्स रिएक्शन रिवर्स एटा इरिवर्सिबल एटा रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल मींस a plus b मिसी की a भी हे पारे बा a b टा a plus b मध्ये हे पारे that is called irreversible reaction so amphibolism is found in Krebs cycle and glycolysis Krebs cycle and glycolysis प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर रे पूरा डिटेल डिस्कशन करा हबो तमे एबे किछि बुझियार नै खाली एग्जांपल मन रखिबा amphibolism कोड होची ना Krebs cycle होची एंड glycolysis होची Krebs cycle and glycolysis रो डिटेल डिस्कशन प्लांट फिजियोलॉजी रे करा हबो मेटाबॉलिज्म occurs in vitro fertilization and in vivo fertilization in vitro fertilization रे एवं in vivo fertilization रे मेटाबॉलिज्म हुए in vitro fertilization रे टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन हुए दैट इज कॉल्ड in vitro fertilization तो टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन हबो केमिति होचे ना टेस्ट ट्यूब रे फर्टिलाइजेशन हेगी टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन होची टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन हबा प्रोसेस को in vitro fertilization प्रोसेस कहा जाए इनसाइड द फीमेल बॉडी जो फर्टिलाइजेशन हुए से फर्टिलाइजेशन को इन विवो फर्टिलाइजेशन कहा जाए तो व्हाट इज इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन fertilization occurs outside the living body that is test tube is called in vitro fertilization in vitro fertilization metabolism occurs in the living cell means जो fertilization living body रा outside रे हुए that is test tube रे हुए living body न है कि test tube रे fertilization हुए से test tube रे fertilization हवा process को in vitro fertilization कहा जाए in vitro fertilization रे metabolism occurs in the living cell metabolism किंतु test tube रे fertilization होची but test tube रे metabolism न होई living cell रे metabolism हुए तो test tube होची non living living cell होची living तो living cell रे ही metabolism हुए non living body रे metabolism हुए नहीं but in case of in vivo fertilization occurs inside the living body that is female body is called in vivo fertilization means जो fertilization living cell भीतर हुए और female body रे हुए that fertilization is called in vivo fertilization एटा female body रे होता है that is fertilization it is normal body formation हुए female रो baby formation हुए that is called the in vivo fertilization रे female body रो male female gamete fusion है zygote formation हुए zygote टा embryo development हुए embryo टा baby formation हुए conclusion कौन कहूची ना metabolism is defining property of living beings or living organisms it is a defining property why it is defining property ना आर कोनोसी exceptional नाइ एडी test tube रे fertilization होची तथापि मेटाबॉलिज्म लिविंग सेल रे ही होची नॉन लिविंग सेल रे होनी इट इज लिविंग सेल रे ही होची एडी फीमेल लिविंग सेल रे ही मेटाबॉलिज्म होची दैट इज लिविंग सेल फीमेल हियर फीमेल बॉडी इज आल्सो लिविंग सेल रे ही मेटाबॉलिज्म होची एडी टेस्ट ट्यूब रे फर्टिलाइजेशन हेले भी लिविंग सेल रे ही मेटाबॉलिज्म होची सो मेटाबॉलिज्म कोनोसी एक्सेप्शनल नाही व्यतिक्रम नाही so metabolism is a defining property of living organisms anabolism जदि increase हुए एवं catabolism जदि decrease हुए तो बॉडी रो ग्रोथ हुए कौन हुए ना anabolism increase है
काटाबोलिज्म डिक्रीज हेले बॉडी ग्रोथ हुए बट एनाबोलिज्म डिक्रीज है काटाबोलिज्म इंक्रीज हेले नेगेटिव ग्रोथ हुए और डी ग्रोथ हुए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज for cellular organization. All living organisms is made up of cell. सब living organism माने cell रो ही तैयार होई थांती, that is called all living organism made up of cell. What is cell? The structural and functional unit of life is called cell. What is the structural and functional unit of life is called cell. Cellular organization means molecules रू सेल ऑर्गेनेल्स फॉर्मेशन हुए, सेल ऑर्गेनेल्स रू सेल फॉर्मेशन हुए, सेल रू टिश्यू फॉर्मेशन हुए, टिश्यू रू ऑर्गन फॉर्मेशन हुए, ऑर्गन रू ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन हुए, ऑर्गन सिस्टम रू ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल फॉर्मेशन हुए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। केतरा मॉलिक्यूल केतरा मॉलिक्यूल रू सेल ऑर्गेनेल्स फॉर्मेशन हुए, सेल ऑर्गेनेल्स को नहीं कि सेल फॉर्मेशन हुए, सेल केतरा सेल मानों को नहीं कि टिश्यू फॉर्मेशन हुए, टिश्यू बहुत गुड़े टिश्यू को नहीं कि ऑर्गन फॉर्मेशन हुए, केतरा ऑर्गन को नहीं कि ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन हुए, ऑर्गन सिस्टम को नहीं कि ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हुए। सो दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अदरवाइज कॉल्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर डिफरेंशिएशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को अदरवाइज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोली कहा जाए किंबा सेलुलर डिफरेंशिएशन बोली कहा जाए। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एभलिया जो ऑर्गेनाइजेशन केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म रे ही पाइबा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रे एभलिया सेलुलर ऑर्गेनिज्म एब्सेंट थिबो। एटा केवल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म रे देखा जाए, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली एब्सेंट थाए। सो आर किछि एक्सेप्शनल नाइ। सो कंक्लूजन कहूची cellular organization is a defining property of living organism. Cellular organization or level of organization or cellular differentiation is a defining property of living organism. काहे कि ना cellular organism रो कोनोसी exceptional नाही। So cellular organization is a defining property of living organism. Next property of living organism is consciousness, or it is otherwise called as responsibleness. What is consciousness? The ability of organism to sense their environment, that is called stimulus, and response is called consciousness or responsibleness. Means ability of organism to sense their environment. Environment को sense पकेवा, that is called stimulus or response करिवा। सपोज बेंगटी तले पड़ी, आखि बुझिकी तले पड़ी, तो से ऑर्गेनिज्म डेथ होइछि ना जीवंत अछि किन जानिबो, ताको टच करबो, किछि एनवायरमेंटल स्टिमुलस, किछि एक्सटर्नल फोर्स पकेबो, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस, किछि टच करबो, ताको बेंगटाको टच कले जदि लिविंग थिले से मूव करबो, जदि नॉन लिविंग थिले से कांस्टेंट सेट रहबो। हेले द एबिलिटी ऑफ सेंस, से सेंस यूटिलाइज कला, जदि एक्सटर्नल फोर्स मु देली तो एक्सटर्नल फोर्स को से सेंस कला, सेंस करिकी से कोन कला, गोटे स्थान रो अन्य स्थान को मूवमेंट कला। तो कॉन्शियसनेस एंड और रेस्पॉन्सिबलनेस इज लिविंग ऑर्गेनिज्म रो प्रॉपर्टी। स्टिमुलस रो प्लुरल फॉर्म स्टिमुली, स्टिमुलस होची सिंगुलर फॉर्म, स्टिमुली होची प्लुरल फॉर्म। स्टिमुली की दि भाग रे डिवाइड होईची, दैट इज external stimuli and internal stimuli. External stimuli means externally किछि stimuli formation करिवो, means stimulus formation हो, stimuli दिया हो। Like plant can respond to external factor like light, temperature, water. Plant कौन करे ना, plant sunlight पड़े plant ऊपर, sunlight जेतेबेले plant ऊपर पड़े तो plant कौन करे, सेंस करिकी रेस्पोंड करे, रेस्पोंड कर सला परे सनलाइट
जेहेतु प्लांट ऊपर पड़ला तो मु फोटोसिंथेसिस करिवि से रेस्पोंड करिवो तो स्टिमुलस करिवो तो प्लांट कैन रेस्पोंड एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट टेम्परेचर वाटर एक्सटर्नली लाइट टेम्परेचर वाटर को से एक्सटर्नल स्टिमुली भाव में से रिसीव करवा तार प्लांट रो फंक्शन करिवो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्टिमुली देन इंटरनल स्टिमुली कोन ना स्टिमुली आर perceived by sense in animals stimuli are perceived by sense in animal that is animal कोन करिवो ना एक्सटर्नल जदि स्टिमुली देले perceived means what is perceived means उपलब्ध करिवा बा जानि परिवा जेते बेले गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म मानू को हम टच करिवा तो से उपलब्ध करि परबो जे ना किछि स्टिमुलस मु ऊपर पडुछि तो स्टिमुलस आर परसीव्ड बाय सेंस इन एनिमल मानकर सेंस द्वारा स्टिमुलस से जानि परबो दैट इज कॉल्ड स्टिमुली आर परसीव्ड बाय सेंस इन एनिमल्स तो ऑल एनिमल्स आर नॉट self consciousness only human is only organism have self consciousness so why human is only organs have self consciousness because organism गुडा को human रो बहुत चिंता करिवार शक्ति थाए सपोज हमें गोटे एनिमल को उदाहरण नेबा तो एनिमल कोन करे मनकर कुकुडा रो एग्जांपल ले कुकुडा कोन करे धान सुखाइथिबो बारंबार से धान खाइबा पय आसीबो से जानि जे धान खाइले मते घोडौछंती बाडौछंती तो से पळेबो आउ किछि समय गला परे आउ थरे आसीबो किंतु ह्यूमन बीइंग मानकर कोन अछि ना से कामटा कले भूल कामटा कले असुविधा हबो दंड पाइबा तो से दंड न पाइबा पय से ह्यूमन बीइंग्स माने कोन करंती ना सतर्क रहंती तो ह्यूमन इज ओनली ऑर्गेनिज्म हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस तारो ह्यूमन बीइंग रही बा ह्यूमन मानकर ही सेल्फ कॉन्शियसनेस थिबो इट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस कंक्लूजन कॉन्शियसनेस केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर ही रुहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर कॉन्शियसनेस पूरा एब्सेंट रुहे दैट कंक्लूजन कोन कहउछि ना कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस होछि लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर ओडे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग organisms so मैं प्रीवियस क्लास मानकर कोन सब डिस्कशन करथिले ना इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी डिस्कशन करथिले एंड सिलेबस देन चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड रे ग्रोथ कोन रिप्रोडक्शन कोन मेटाबॉलिज्म कोन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कोन देन कॉन्शियसनेस कोन एंड डेथ तो ये 5 important properties of living organism is growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness. ये पांचटा मध्यरु growth and reproduction are coming under non-defining property of living organism, but other that is metabolism, cellular organization and consciousness is coming under defining property of living organism. Why growth and reproduction is not coming under defining property of living organisms? Because growth and reproduction has some exceptional. That exceptional is growth and reproduction living organism मानकर मध्य हुए non living organism मानकर मध्य हुए तो growth and reproduction is coming under non defining properties of living organism but consciousness metabolism cellular organization ये तीनटा properties केवल living organism मानकर ही हुए so growth so consciousness metabolism and cellular organization is coming under defining property of living organism.